हेलो बच्चों, वेलकम एट इंग्लिश सफलता। टुडे इज द टाइम टू टीच यू अबाउट इंडिगो। इंडिगो, which is not only the story written by Louis Fisher, but it is the story which we want to tell you. It is totally on the real story of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, who has given his all devotion to his life to our country. He has devoted his life to serve the country and countrymen, poor man, and sharecropper also. This is the story about the conflict between Britishers and the sharecropper. It is the story which happened at Champaran, a place of Bihar. One day, a man, Rajkumar Shukla, came to Gandhiji near Lucknow. He told him that, "Sir, please help us because we were told that only you can help us, so I have come to you for your help." Gandhiji told him that he can't help him because he has so many work. He told that if you will not help me, so I will always follow you. Where will you go? All time where Gandhiji went, there Rajkumar Shukla also follow him. This is the very intelligent thinking of that man, that he follow Gandhiji, and Gandhiji thinks that he devoted his time to him. Why? Why he is following him? So he thinks that he must have to help him, and he told him that if he has real time, and he will went with him. One day Gandhiji told him that, "I really want to come to with you." Rajkumar Shukla and Gandhiji went to Bihar, the place of Patna. Gandhiji want to solve this problem. I am going to explain this story line by line, so please listen this story very carefully and understand all the situation, events created there, year wise and person wise. Please, there are many persons and all the eventual years. Please carefully listen this story. Indigo, about the author Louis Fisher, 1896, जिनका जन्म 1896 में हुआ है, was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army. इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में वॉलेंटियर के तहत सेवा किया था 1918 and 1920 तक. Fisher made a career as a journalist and wrote the New York Times. फिशर ने जर्नलिस्ट के रूप में न्यूयॉर्क टाइम्स में काम किया था. द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस में भी उन्होंने काम किया था.
He was also a member of the faculty at Princeton University. The following is an excerpt from the book, The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. This expression in the text urged the departure. When I first visited Gandhi, ये लुइस फिशर ने कहा है कि जब मैं पहली बार गांधी जी से 1942 में मिला, तो गांधी जी के बारे में मेरे बच्चों आप सभी लोग जानते होंगे, इसमें कोई बताने की बात ही नहीं है कि हु इज गांधी जी, आवर नेशनल फादर, ही इज नोन बाय दिस नेम एंड यू मस्ट नो हिम. So please listen this story very carefully. What things happened. When I first visited Gandhi in 1942, गांधी जी से मैं पहली बार 1942 में जब मिला at his आश्रम in सेवाग्राम में उनके आश्रम में जब मैं पहले मिलने गया in Central India, he said, उन्होंने मुझसे कहा, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों मैं इस डिपार्चर से निर्णय लिया, इस ब्रिटिश को यहां से हटाने का क्यों निर्णय लिया, मैं आपको बताना चाहता हूं. मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था, मुझे कोई इसमें इच्छा नहीं थी कि मैं ब्रिटिश को हटाऊंगा, बट मैं हटाना क्यों चाहा इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं. उन्होंने लुइस फिशर को बताया. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. एक बार 1916 में इंडियन एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में वह लखनऊ में आए थे. देयर वेयर 2301 डेलीगेट्स एट मेनी विजिटर्स. करीब 2301 डेलीगेट्स थे. During the proceeding, Gandhiji recounted a peasant came up to me looking like any other peasants in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla, I am from Champaran and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. It was the foothills of the towering Himalayas near the किंगडम ऑफ नेपाल. गांधी जी ने बताया कि राइटर को गांधी जी ने बताया कि जब वह लखनऊ के नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो कन्वेंशनल मीटिंग चल रही थी, उस समय जब वहां थे तो एक पिजेंट्स जो था, पिजेंट्स मीन्स होता है फार्मर यानी किसान. किसान जैसे कि सभी किसान दिखते हैं, एकदम दुबले से पतले से, ऐसे वो बिल्कुल आया और एकदम गरीब सा दिख रहा है. और वो कहता है कि गांधी जी, मैं राजकुमार शुक्ला हूं, मैं चंपारण से आया हूं. तो गांधी जी, जिन्होंने कि चंपारण का कभी नाम ही नहीं सुना था, वह उससे पूछते हैं कि ये जगह कहाँ है, ये क्या है, चंपारण क्या है. तो उन्होंने गांधी जी को बताया कि चंपारण नेपाल किंगडम के बॉर्डर पर एक फुटहिल्स एरिया में है. अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वेयर शेयर क्रॉपर्स. प्राचीन जो हमारे यहाँ से अरेंजमेंट चली आ रही है, जो जमींदारी व्यवस्था चली आ रही है, उस व्यवस्था के तहत चंपारण के जो किसान हैं, उन्हें अपने हिस्से की जो खेती करते हैं वो ब्रिटिशर्स को उन्हें देना पड़ता है. राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम. उन्हीं में से राजकुमार शुक्ला एक है. ही वाज इलिटरेट बट रिसोल्यूट. वह अशिक्षित थे लेकिन अपने सोच के प्रति वह दृढ़ थे, डिटरमाइंड थे. ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार. वह कांग्रेस सेशन में कंप्लेन करने आए थे गांधी जी से कि वह जो लैंडलॉर्ड के जमींदार व्यवस्था का जो सिस्टम है बिहार में, वह उसके
तहत जो अन्याय होता है उसके खिलाफ वह कंप्लेन करने आए थे। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी जी, वह वहां कंप्लेन करने आए थे। उसी समय किसी ने उससे कहा कि आपको जो कुछ बात करना है वह गांधी जी से कहिए, गांधी जी आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी ने शुक्ला से कह दिया कि उनकी अपॉइंटमेंट है कानपुर में, कानपुर और इंडिया के अन्य पार्ट्स में भी उनकी अपॉइंटमेंट है जहां उनका जाना जरूरी है। शुक्ला accompanied him everywhere, उन्होंने जब कह दिया उनके पास टाइम नहीं है, उन्हें कई जगह जाना है, तो वह शुक्ला ही उनके पीछे पीछे चल पड़ता था। चलो मैं ही चलता हूं, मैं ही आपके साथ चल रहा हूं, आप जहां जाओगे मैं आपके साथ साथ रहूंगा। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर गांधी वापस आ गए अपने आश्रम के पास अहमदाबाद में। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला उनके पीछे आश्रम पर भी गया। तू जहां जहां जाएगा मेरा साया साथ चलेगा। 4 weeks ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, एक करीब सप्ताह भर तो वह गांधी जी का साथ ही नहीं छोड़ा। चलिए जहां चलेंगे हम आपके साथ चलेंगे। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, उन्होंने कहा कि आप कोई एक डेट फिक्स कर दीजिए कि आप मेरे साथ चलेंगे। इसके बाद इम्प्रेस्ड बाय द शेयरहोल्डर्स टेनेंसिटी एंड स्टोरी गांधी सेड, शेयरहोल्डर्स के टेनेंसी और स्टोरी से इम्प्रेस होकर गांधी ने कहा आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट, उन्होंने कुछ डेट बताया कि इस तारीख को मुझे कलकत्ता जाना है और वहां से जब वापस आऊंगा कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, वो कहते हैं कि जब मैं वहां से वापस आऊंगा तब मुझसे मिलने आना और मुझे वहां ले चलना। Months passed, Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. जिस महीने में गांधी ने बोला था वो मंथ जब समाप्त हुआ, मंथ पूरा होने के बाद गांधी जी के पास राजकुमार शुक्ला उस स्पॉट पर जहां पर कि गांधी ने अपॉइंटमेंट फिक्स किया था वहां पर वो आके ऑलरेडी पहले से ही बैठे हुए थे, पहले से ही आके बैठ गए थे। कल गांधी अराइव्ड ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, और तब तक वह वहीं गए, चलो मैं यहीं बैठ जाता हूं और जब तक आप मेरे साथ नहीं चलेंगे मैं तब तक यहीं बैठा रहूंगा और आपका इंतजार करूंगा। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, तब वह दोनों पटना शहर के लिए बिहार की ट्रेन में बैठे। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद हु लेटर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। रास्ते में जब वो जा रहे थे तो पटना में वहीं पर उतरे तो राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बताया कि यहीं पर राजेंद्र प्रसाद एक प्रसिद्ध लॉयर हैं, वकील हैं, उनका घर है, चलिए हम वहां मिलने चलते हैं। तो वो जो कि राजेंद्र प्रसाद आप लोग अच्छे से उनके बारे में जानते होंगे, आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद टाउन से बाहर गए थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमैन हु पेस्टेड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर कूपर्स। राजेंद्र प्रसाद तो बाहर गए थे लेकिन उनके जो मित्र थे, उनके जो सभी साथी थे वो अच्छे से उनके जो सर्वेंट्स थे वो राजेंद्र प्रसाद के बारे में जान रहे थे कि राजेंद्र प्रसाद के पास ये आता है और हेल्प के लिए डिमांड करता है कि मेरी हेल्प करिए, यह शेयर कॉपर है और ये गरीब है और अनटचेबल है, इसलिए वो अच्छे से उसके बारे में जानते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विथ हिज कंपेनियन, इसलिए वह कहते हैं कि ठीक है जाओ वहीं बाहर बैठ के
जमीन पर उनका वेट करो। तो वह राजकुमार शुक्ला और गांधी दोनों वही जमीन पर बैठ जाते हैं। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विथ हिज कंपेनियन गांधी whom they took to be another peasants। गांधी को वह दूसरा कोई किसान समझा कि वह भी किसान ही होगा और उन्हीं के साथ आया है, इसलिए यह सोचकर वह दोनों को जमीन पर बैठा देता है। गांधी जी but Gandhi was not permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source। गांधी whom they took, गांधी जी को उसी समय प्यास लग गई, गांधी जी पीछे गए कुआं के पास पानी पीने के लिए, तो एक सर्वेंट्स ने देख लिया और उसने कहा कि सुनो, ये जो कुएं का पानी है तुम छुओ मत, मैं तुम्हें पानी पिलाता हूं, क्योंकि अगर तुमने पानी को छुआ तो एक ड्रॉप भी जो पानी अगर तुम्हारे हाथ से गिर गया तो पूरा कुएं का पानी पल्यूट हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, क्योंकि वो ही नहीं जानता था कि गांधी जी अनटचेबल नहीं है। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट टू चंपारण। गांधी जी ने निर्णय लिया कि पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे जो कि चंपारण के लिए रास्ते में पड़ता है। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। वह इस सारी जानकारी को लेने के लिए पहले मुजफ्फरपुर रुकना चाहते थे, क्योंकि वो यह जानना चाहते थे कि इसके बारे में और सारी क्या सूचनाएं हैं और कितनी सूचनाएं हैं और क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन ये शुक्ला न जानता हो, इसलिए वो मुजफ्फरपुर रुकना चाहते हैं। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी। उन्होंने इसके तहत जेबी कृपलानी प्रोफेसर को टेलीग्राम भेजा। ऑफ आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर को, जिसका नाम जेबी कृपलानी था, उनको एक टेलीग्राम भेजा। whom he had seen at टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल, जिनसे कि वह टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिल चुके थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, ट्रेन आधी रात को पहुंचती है। 15 अप्रैल 1917 को 15 अप्रैल 1917 को मिडनाइट में ट्रेन पहुंचती है। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। कृपलानी स्टेशन पर एक मतलब बच्चों की बड़ी संख्या के साथ, बहुत ज्यादा बच्चों के साथ कृपलानी वहां पर स्टेशन पर वेट करते हैं। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। गांधी वहीं पर एक प्रोफेसर मलकानी है जो कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, उनके घर पर रुकते हैं। इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग इन दोज डेज गांधी जी कमिटेड फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू आवर मैन like me in smaller localities. The Indians were offered to show sympathy for advocates of home rule। चूंकि वह एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था मलकानी, तो वो सोचते हैं कि अगर मैं इनके यहाँ रुकता हूं तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी को पता चलता है कि मेरे जैसा यानी गांधी जी जैसा आदमी जो कि पूरे आंदोलन पे जुटा हुआ है, उसे जो है कहीं ऐसा ना हो कि उसके कारण उस व्यक्ति को नौकरी खोनी पड़े, तो उसकी रोजी रोटी जा सकती थी, इसलिए वह इससे थोड़ा सा हटना चाहते थे। द न्यूज ऑफ गांधी जी एडवेंट एंड ऑफ नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। अब जो गांधी ने जो कार्य किया वहां पर स्टेशन पर, उसके कारण गांधी जी की जो ख्याति थी वह चंपारण और मुजफ्फरपुर के जगह जगह पर फैल चुकी थी। शेयर कूपर्स फ्रॉम चंपारण बिगैन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस टू सी डियर चैंपियन। अब गांधी जी जो कि उनके साथी थे शेयर कूपर्स के हेल्प के लिए आए थे, इसलिए
जितने भी पीजेंट्स थे नंगे पांव गांधी से मिलने पहुंचते हैं। Muzaffarpur liars called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasants group in court. वे उन्हें peasants की कोर्ट में ले जाते हैं. They told him about their cases and reported the size of their fee. वो उन्हें अपनी फी और उनके साइज केसेस के बारे में बताते हैं. Gandhi ji chided the liars for collecting the big fee from the sharecroppers. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. Taking such cases to the courts does little good. Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. गांधी जी ने कहा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए वो लायर्स को जो अपनी लंबी फीस बड़ी फीस की जिक्र करते हैं केसेस सुनकर उन्हें वह चार्ज करते हैं रिव्यू करते हैं फटकारते हैं कि तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुम लोगों जैसे को कि तुम लोग फीस वसूलने में पड़े हुए इन पीजेंट्स से ये जो गरीब पीजेंट्स हैं जिन्हें यहाँ पर खाने के लाले पड़े हुए हैं जो खाने को तरस रहे हैं जो अपनी फियर से डर रहे हैं फियर है जिनको भय है कि उनका खेत छीना जा सकता है उनसे उनके हिस्से की जमीन ली जा सकती है ऐसे लोगों से तुम फीस वसूलने पे तुले हो मैं जिनको जानता नहीं हूं उनके लिए मैं यहां से आया हूं इस कंक्लूजन को पर इस निष्कर्ष पर निकालने के लिए मैं इस निष्कर्ष को निकालना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या है क्यों ये लोग इतना वो इन्हें परेशान कर रखे हैं और तुम लोगों को फीस की पड़ी है इस बात को लेकर वह बहुत तेजी से उनको फटकारते हैं Most of the arable land in Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड जो मतलब जो उपयोगी जमीन है इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट में वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स या बड़े हिस्से में बांट दी गई ओन्ड बाय इंग्लिशमैन जिसका ओनर इंग्लिशमैन यानी अंग्रेज हैं एंड वर्क्ड बाय इंडियन टीजेंट्स और काम कौन करता है हमारे किसान काम करते हैं उनके मालिक अंग्रेज हैं और काम हमारे किसान करते हैं द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो और करना क्या है वहां इंडिगो की खेती करनी अब इंडिगो क्या होता है इंडिगो एक प्रकार का डाई जिससे डाई बनती है वह एक फसल है वह उसका फूल जो होता है उसे कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करके उसको पाउडर बनाया जाता है जिसका प्रयोग डाई बनाने के लिए किया जाता है वह डाई जो कपड़े उपड़े में कलर किया जाते हैं ऐसी डाई का प्रयोग करने के लिए किया जाता है द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 or 15% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by long-term contract. जो लैंडलॉर्ड्स हैं कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स वह लैंडलॉर्ड पूरे किसानों को टेनेंट्स जो होते हैं जो टेनेंट्स उनको कहते हैं वो किसान जिन्हें खेती करनी पड़ती है अपने जमींदार के लिए ना कि वो खुद के लिए करते हैं फार्मर होते हैं फार्मर खुद के लिए करते हैं बस टेनेंट्स जो होते हैं टेनेंट्स मींस होता है जो कि किसी के द्वारा परेशान किए गए हों किसी के द्वारा तड़पाए जाते हों ऐसे किसानों की बात की जा रही है टेनेंट्स उन्हें कहते हैं उन टेनेंट्स को जिनको कि लैंडलॉर्ड कंपेल करते हैं बाध्य करते हैं और कहते हैं कि 3/20 or 15% ऑफ देयर होल्डिंग वो अपने हिस्से का 15% जो है इंडिगो विथ सरेंडर एंड इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट और पूरा इंडिगो रेंट पर बनाएंगे दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और यह लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट था ना कि एक बार का था यह पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था कि जब तक खेती इंडिगो की होगी और वह पूरा परसेंटेज जो है 50% हिस्सा वो अपने पास से भी देंगे और पूरी खेती भी देंगे
Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. अब चूंकि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार, उन्होंने सुन रखा है कि जर्मनी अब एक सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर रहा है. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. वो अब जो जमींदार हैं वो कहते हैं कि जो 15% का अरेंजमेंट है उसके लिए उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा. अब क्या है? द शेयर क्रॉपिंग arrangement was assumed to the peasants and many signed willingly. अब उन्हें करना है, मजबूरी है, इसलिए उन्हें willingly साइन करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, हम छोड़ देते हैं एज ए कंपनसेशन, हम दे भी देते हैं और वो दे देते हैं. Those who resisted engaged liars. The landlords hired her. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. अब होता क्या है कि चूंकि वो कंपनसेशन के तहत मनी तो दे चुके होते हैं, लेकिन ठीक उसी समय उन्हें ये सूचना मिलती है कि अगर वो कंपनसेशन नहीं भी देते तब भी वो जो है इंडिगो जो कि जर्मनी उत्पादन कर रहा है, बना रहा है, उसके तहत उन्हें तब भी जो है 15% वो ले लेते. एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण. इसी बात पर गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं. ही बिगैन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स. और वह सत्य जानने के बाद शुरू करते हैं. फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन. सबसे पहले वह ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिलने जाते हैं. द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर. वो सेक्रेटरी है, कहता है कि हम किसी भी बाहरी व्यक्ति को कोई सूचना नहीं दे सकते. इस बात पर गांधी जी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर. वह कहते हैं कि मैं कहीं बाहर का नहीं हूं. नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द ट्रूहान डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले. अब जिस डिस्ट्रिक्ट में चंपारण डिस्ट्रिक्ट जहां पर बसा हुआ था, वहां के जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर थे, उन्होंने वहां पर गांधी जी ने उनको बुलाया. द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बली मी एंड एडवाइज्ड मी forthwith टू लीव टायरहंट. वो कहते हैं कि आप ये जो जगह है उसे छोड़ के चले जाइए. गांधी जी कहते हैं कि आप ये जगह छोड़ के चले जाइए. गांधी जी डिड नॉट लीव. गांधी जी कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ू. गांधी जी से कहते हैं वो कि आप ये जगह छोड़ के चले जाइए. गांधी जी कहते हैं मैं नहीं जाने वाला हूं. इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण. इसके अलावा वो चंपारण की जो कैपिटल है वहां पर जाते हैं. सेवरल लायर्स अकॉम्पनीड हिम. अब उनके साथ बहुत सारे लायर्स भी पहुंच जाते हैं. एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी. रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी जो है भीड़ आती है. He went to a house and using it as a headquarters continued his investigations. A report came in that a peasants had been maltreated in a nearby village. Gandhi decided to go and see. The next morning he started out on the back of an elephant. वह गांधी जी हाथी की पीठ पर दोनों बैठ के जाते हैं. He had not proceeded for when the police superintendent messenger overtook him and ordered him to return to town. उसी समय एक पुलिस सुपरिटेंडेंट आता है और मैसेंजर रहता है और वो कहता है कि उन्हें वहां से छोड़ के टाउन चला जाना चाहिए. इन दिस कैरेज, इस जगह से वहां चले जाना चाहिए. गांधी जी कंप्लीट गांधी जी ने कहा. द मैसेंजर ड्रॉव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली. वहां पर उन्हें एक ऑफिशियल नोटिस आती है कि आप तुरंत चंपारण छोड़ के जाइए. गांधी जी साइंड द रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर. गांधी जी उस
इंफॉर्मेशन को लेते हैं, रिसिप्ट को उसे रिसिप्ट करते हैं, लेते हैं और नोटिस पढ़ते हैं बहुत आराम से। उसको लगता है कि चलो अब तो बात बन गई, अब ये तो चले जाएंगे, लेकिन गांधी जी ने उस पर लिख दिया कि मैं इस ऑर्डर को नहीं मानता, डिसओबे करता हूं। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी जी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। इस बात के लिए इस मतलब यह एक सरकार के खिलाफ एक गलत कार्य था, जिसकी वजह से गांधी जी को कोर्ट में जाना पड़ा। All night गांधी जी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जी जागते रहे। He telegraphed राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। वह गांधी जी को टेलीग्राम भेजते हैं कि उन्हें बिहार आना चाहिए। He sent instruction to the आश्रम, वह आश्रम में उन्हें इंस्ट्रक्शन भी भेजते हैं। He wired a full report to the वायसराय, वह उन्हें कहते हैं कि आप पूरी रिपोर्ट वायसराय को भेजिए। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, पीजेंट्स के साथ मोतिहारी में सभी लोग आते हैं। दे डिड नॉट नो गांधी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वे गांधी जी के रिकॉर्ड को साउथ अफ्रीका में जो उनका रिकॉर्ड रहा उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। दे हैड मेयरली heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities। वह यह सुन रखे थे कि एक महात्मा जो उनकी हेल्प करने के लिए आया है अभी वो ट्रबल में है, परेशानी में है। Their spontaneous demonstrations in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British। अब वे ब्रिटिश के डर से वहां पर से निकल जाते हैं। The officials felt powerless without गांधी जी कोऑपरेशन, जो ऑफिशियल्स हैं वो पावरलेस महसूस करते हैं, यानी कि अपने को शक्तिहीन महसूस करते हैं गांधी जी की कोऑपरेशन के बिना। He helped them regulate the crowd, वह उनकी मदद करते हैं कि वो भीड़ इकट्ठा करे। He was polite and friendly, वह विनम्र रहते हैं और मित्रवत रहते हैं। He was giving them concrete proof that their might hitherto dread and unquestioned could be challenged by Indians. The government was baffled. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently, the authorities wished to consult their superiors. Gandhiji protested against the delay. He read a statement pleading guilty. He was involved. He told the court in a conflict of duties. On the one hand, not a set of bad example as a lawbreaker, on the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. He disregarded the order to leave, not for want of respect or lawful authority, but in obedience to the higher law of the being, the voice of conscience. He asked the penalty due। वह उन्हें एक तो इस बात के लिए कोर्ट में हाजिर किया गया था कि उन्होंने यहां से जाने का ऑर्डर नहीं माना, और दूसरी एक वह जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनकी मदद करने आए थे। इस बात से वहां के जो ऑफिसर्स थे वो बहुत नाराज थे, इसलिए उन्होंने इस बात को, कोर्ट भी इस बात को डिले कर रही थी कि इसे डिले कर दिया जाए। तो उसी समय द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2-hour recess and asked Gandhiji to furnish bail for those 120 minutes. Gandhiji refused. The judge released him without bail। वह कहते हैं कि उनकी जमानत बहुत कुछ दिन बाद हो जाएगी, तो वो कहते हैं कि मैं इस बात को रिफ्यूज करता हूं। इसके बाद जज ने बिना बेल के उन्हें रिलीज कर दिया। When the court reconciled, the judge said he would not deliver the judgment for several days। वह कहते हैं कि अभी बहुत दिनों तक कोई सुनवाई नहीं होगी, जज बोलता है। Meanwhile, he allowed Gandhiji to remain at liberty। उसी समय उन्होंने गांधी जी को लिबर्टी पर छोड़ दिया। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूर हक and several other prominent lawyers had arrived from Bihar।
ये जितने नाम हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद हैं, बृज किशोर बाबू है, मौलाना मजरूल हक हैं, और बहुत सारे जो लायर्स थे वह बिहार पहुंचते हैं, बिहार से वहां पहुंचते हैं। दे कंफर्ट विद गांधी, वह गांधी के साथ मिलते हैं। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, अगर कोर्ट ने उन्हें जेल कर दिया होता तब वे क्या करते? गांधी जी आस्क्ड व्हाई। द सीनियर लायर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। वो कहते हैं कि गांधी जी उनको एडवाइस देने के लिए आए हैं और गांधी जी उनको एडवाइस देते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो जितने लायर हैं काम करते हैं। अगर गांधी जी को जेल हो जाएगी तो उन्हें एडवाइस देने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए वो उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। इस बात को सुनते ही गांधी जी उन्हें बहुत ही नाराज होते हैं। वो कहते हैं व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयरहोल्डर्स, आप लोग जो कि इतने सीनियर लायर हैं, आप लोग ऐसे सोच रहे हैं और यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं सिर्फ मेरे ना रहने से, तो आप बताइए कि ये जो शेयरहोल्डर्स हैं इनके खिलाफ जो इनजस्टिस हो रही है उसका क्या? गांधी जी डिमांडेड, गांधी जी ने पूछा। द लायर्स विथड्रू टू कंसल्ट, राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेंट्स, राजेंद्र प्रसाद ने तुरंत बहुत ही ध्यान से बात को सुना और सोचा ये तो बात सही है। दे थॉट अमंगस देमसेल्व्स दैट गांधी वाज टोटली स्ट्रेंजर, वो तुरंत समझ जाते हैं और बोलते हैं कि गांधी जो कि बिल्कुल ही स्ट्रेंजर है यहाँ के लिए, पटना के लिए, चंपारण के लिए, वह व्यक्ति यहाँ आया है और एंड इट वाज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन, और वह इन शेयरहोल्डर्स के लिए जेल भी जाने को तैयार है, वह इन शेयरहोल्डर्स के लिए जेल जाने को तैयार है। Being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants, और हम लोग जो ये कहते हैं कि हम इन किसानों की सेवा करते हैं और हम ही यहाँ नहीं करना चाहते हैं, तो इसका क्या है? Peasants should go home, it would be shameful destruction, जो किसान है वो यहाँ से जाएं, और यह हम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है कि हम लोग अपने किसानों की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। Several days later, गांधी जी they accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप जेल में भी होंगे तब भी हम आपकी बातों को, जेल से ही आपके जेल रहने पर भी हम आपकी बातों को फॉलो करेंगे। आप उनके पास जाके गांधी के पास सारे लॉयर्स बोलते हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वोन, चंपारण का जो युद्ध है वो जीत जाता है। ही एक्सक्लेम्ड, वह तुरंत एक्सक्लेम मतलब होता है अचानक से चीख के बोलते हैं। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। वह तभी जो है एक पेपर उठाते हैं और सबको ऑर्डर देते हैं पेयर में और कहते हैं कि आपको ऐसे करना है। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों बाद, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन from the magistrate informing him that the lieutenant government of province had ordered the case to be dropped. वो कहते हैं कि गांधी जी कहते हैं, गांधी जी के पास एक रिटन कम्युनिकेशन आती है कि मजिस्ट्रेट जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर इस प्रोविडेंस के, वह इस केस को ड्रॉप करना चाहते हैं। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रिम्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में पहली बार सिविल डिसोबीडियंस की जीत हुई है। गांधी एंड द लायर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंस ऑफ द फार्मर्स। दिस डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 peasants were written, जिसको कि 10,000 बार जो किसानों ने लिखा था उसको उन्होंने देखा। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और उन्होंने दूसरी एविडेंस पर नोट्स बनाए। डॉक्यूमेंट्स वेयर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। इन जून गांधी जी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर।
जून में गांधी जी ने सम्मन किया सर एडवर्ड गेट को, द लेफ्टिनेंट गवर्नर। बिफोर ही वेंट ही मेट, जब वहां जाने से पहले ही मेट, वह मिले। लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड plans for civil disobedience if he should not return, अगर वह नहीं लौटेंगे तो वह क्या करेंगे। गांधी जी had protracted interviews with the lieutenant governor who as a result appointed an official commission of inquiry into the Indigo sharecroppers situation। गांधी जी जो लेफ्टिनेंट थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर से करीब 4 बार मिले और 4 बार उनका इंटरव्यू उनके साथ हुआ। और जब इसके बाद 4 बार इंटरव्यू होने के कारण जो लेफ्टिनेंट था उसने एक ऑफिशियल कमीशन बनाई इंक्वायरी के लिए इंडिगो शेयरहोल्डर्स पर। सिचुएशन, द कमीशन consisted of landowners, government officials and Gandhiji as the sole representative of the peasants. Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. The visits undertaken casually. Visits जो थी वो casually थी on the entry of an unlettered peasants in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of गांधी जी लाइफ। गांधी जी की लाइफ का यह पूरा जो गांधी जी के अपने जीवन काल का यह एक बहुत बड़ा इवेंट था। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग planters and when they saw this they agreed in principle to make refunds to the peasants। जब उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स को देखा, इंक्वायरी हुई, तो इस इंक्वायरी के तहत उन्होंने कहा कि हम रिफंड कर देंगे। हम जो पैसा लिए हैं एज ए कंपनसेशन, जो कंपनसेशन था 20% का 20 मतलब जितना भी कंपनसेशन उन्हें देना था उस कंपनसेशन को कहते हैं कि हम रिफंड करेंगे। बट कहते हैं they thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers। वो कहते हैं सोचे कि ये जो गांधी है वो पूरी पैसे की डिमांड मांगेगा कि जितना उन्होंने दिया है वो फुल पेमेंट उन्हें मिले, इस बात की वो डिमांड करेगा। तो वो कहते हैं कि ही आस्क्ड ओनली 50%। वो तो मानेगा तो क्या 50% पे, वो तो फुल मांगेगा, लेकिन नहीं मिलेगा तो 50% पर ही मानेगा, उससे कम से नहीं मान सकता। देयर ही सीम्ड एडमैन। राइटर्स रिवॉर्डेड J.J. Hall, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at a close range, thinking probably that he would not give way, the representative of the plantations offered to refund the extent of 25% and to his amazement Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock। अब जो वो सोचते हैं कि ये तो 50 से नीचे मानने वाला नहीं है, तो वो कहते हैं कि अगर हमारी जो योजना है जब ये नहीं मानेगा तो ये बात जो है कोर्ट में फिर जाएगी, बात डिले होती जाएगी, टलती जाएगी, टलते टलते यह केस एकदम डेडलॉक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, द सेटलमेंट वाज एडॉप्टेड unanimously by the commission। Gandhiji explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlord had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law। Now the peasants saw that he had rights and defenders, he learned courage। Events justified Gandhi's position when within a few years the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants। Indigo sharecropping disappeared। वो कहते हैं कि
जब ये 25% पे नहीं मानेंगे तो बातें खत्म हो जाएंगी और यह सेटलमेंट जो होगा अडॉप्टेड एबनॉर्मसली बाय द कमीशन, और कमीशन इस बात को नहीं मानेगा। गांधी जी एक्सप्लेन दैट ही द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस। वो कहते हैं कि जो अमाउंट है वो लेस है, मुझे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई वॉन्ट टू द प्रेस्टिज ऑफ द शेयर कूपर्स, मैं केवल जो शेयर कूपर्स हैं मैं उनकी प्रेस्टिज की बात करता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे उनकी प्रेस्टिज चाहिए। Events justified Gandhi's position. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. Gandhiji never contented himself with a large political or economic solutions. गांधी जी ने कभी भी इस कंटेंट पर खुद को अपनी इस लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस को उन्होंने नहीं देखा। He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. वह उससे ज्यादा चंपारण के लोगों को, चंपारण के जो गांव वाले थे उनके सोशल प्रेस्टीज की बात वो करते हैं कि उनकी सोशल प्रेस्टीज बने, उनकी सोशल प्रेस्टीज जो है न समाप्त हो, उनकी कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस ही हो। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, two young men who had just joined गांधीजी as a disciples। दो व्यक्ति हैं, नरहरि पारिक और महादेव देसाई, ये दोनों यंग पीपल हैं, ये दोनों अभी जल्दी गांधी जी को ज्वाइन किए थे एज ए डिसिपल, शिष्य के रूप में। एंड देयर वाइफ वॉल्टर्ड फॉर द वर्क, और एंड देयर वाइफ और उनकी पत्नियां वॉल्टर्ड फॉर द वर्क, और काम के लिए वो तैयार थी। सेवरल मोर केम फ्रॉम, बहुत से लोग और भी आए बॉम्बे से, पूना से और अदर डिस्ट्रिक्ट पार्ट्स ऑफ द लैंड, मतलब आपके कंट्री के अधिकतर पार्ट से लोग उनको ज्वाइन करने आए। देवदास गांधी जी एंगेस्ट सन, देवदास का जो देवदास गांधी जी का छोटा लड़का जो था, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी, और चूंकि देवदास गांधी के जो छोटे बेटे थे और स्वयं मिसेस गांधी भी आश्रम में पहुंचती हैं। गांधी जी प्राइमरी स्कूल्स वेयर ओपन, प्राइमरी स्कूल्स वेयर ओपन इन 6 विलेजेस, 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल्स ओपन किए गए। कस्तूरबाई जो कस्तूरबाई हैं और टाट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशंस, वो वहां के बच्चों को स्वयं क्लीनलीनेस के बारे में और कम्युनिटी सैनिटेशंस के बारे में उन्हें बताती हैं, उन्हें पढ़ाती हैं, खुद अपने कस्तूरबा बाई जाती हैं। हेल्थ कंडीशंस वेयर मिजरेबल, वहां की जो हेल्थ कंडीशंस थी वो बहुत ही मिजरेबल थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ, गांधी जी ने वॉलंटियर से डॉक्टर की व्यवस्था करवाई। 3 मेडिसिन वेयर अवेलेबल, वहां पर 3 मेडिसिन अवेलेबल हुई। पहला कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ये तीनों दवाइयां जो कि दी जाती थी उनके कुछ जो कॉमन डिजीजेस थी उस डिजीज में ये दवाइयां दी जाती थी। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, वह जिन्हें की टंग की कोई डिजीज होती थी उन्हें कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल, और वो जो किसी को भी अगर मलेरिया होता था तो उन्हें क्विनाइन और कैस्टर ऑयल दोनों दिया जाता था। एनीबडी विथ स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, और जो कोई अगर उसे स्किन कोई डिजीज होती थी तो उसे ऑइंटमेंट कौन सा दिया जाता था, सल्फर ऑइंटमेंट और कैस्टर ऑयल दोनों दिया जाता था। गांधी जी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ, गांधी जी ने कहा कि आप पर्सनल वुमेन क्लॉथ्स पर केयर करिए। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, वह उनसे कहते हैं कि आप स्वयं उनसे बात करिए। वन वुमेन टूक कस्तूरबा बाई इनटू हर हट एंड सेड, एक औरत कस्तूरबा बाई को अपने घर ले जाती है और कहती है, लुक देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड हियर फॉर क्लॉथ्स, देख लीजिए यहाँ पर कोई ना तो कपबोर्ड है ना तो कोई बॉक्स है कपड़े के लिए। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव,
मेरे पास केवल यही एक साड़ी जो मैंने पहन रखी है वही है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी जी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। गांधी जी ने आश्रम को बहुत दिनों से देखा था। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। वह मेल से बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस भेजते थे और फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में पूछते रहते थे। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स दैट इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैंड trenches and dig new one, otherwise the old one would begin in a smell bed। वह कहते हैं कि अभी नए जो है लैट्रिन की जरूरत है, लैट्रिन्स की, क्योंकि अगर वही पुराना है तो हो सकता है स्मेल ज्यादा आने लगे, बदबू ज्यादा आने लगे। द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। गांधी जी के लाइफ में चंपारण का जो एपिसोड था वहीं से टर्निंग पॉइंट थी। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। मैंने किया क्या, बहुत ही सामान्य सी बात है। I declared that the British could not order me about in my own country। मैंने यह बात डिक्लेयर कर दी कि the British could not order me about in my own country। ब्रिटिश मेरे कंट्री में, जो कि बाहर का है, वह मेरे कंट्री में आके कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। मैं इस बात को डिक्लेयर कर दिया। बट चंपारण डिड नॉट बिगेन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस। It grew out of an attempt to alleviate the distress of large numbers of poor peasants। लेकिन चंपारण जो था वह इससे दूर रहा और यहाँ के जो पीजेंट्स थे उन्हें बहुत ज्यादा समस्याओं को झेलना पड़ा। दिस वॉज द टिपिकल गांधी जी पैटर्न, और यही गांधी जी के लिए टिपिकल पैटर्न था। हिज पॉलिटिक्स वेर इंटरव्यूड विथ द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द मिलियंस। अब वो मिलियन लोगों से डे टू डे, पर डे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे। ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग। वह कहते हैं किसी एक के लिए मेरी लॉयल्टी नहीं है, मेरी लॉयल्टी पूरे ह्यूमन बीइंग के लिए। मैं अपने पूरे ह्यूमन बीइंग के लिए लॉयल हूं और लॉयल्टी मेरी उन्हीं के प्रति है। इन everything Gandhiji did not, moreover he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free। इस तरह से उन्होंने इंडिया को फ्री किया। Early in the Champaran action, Charles Freer Andrews in the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma Gandhi। एक चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयू थे जो कि चंपारण के इस एक्शन से गांधी जी के डिवोटिव फॉलोवर बन गए। Came to bid Gandhiji farewell before going on a tour of duty to the Fiji Island। फिज आइलैंड की ड्यूटी के लिए जब वह जा रहे थे तो वह गांधी जी को फेयरवेल बोलने के लिए यानी अलविदा बोलने के लिए आते हैं। गांधीज लायर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। यह जो लायर होते हैं वो सोचते हैं कि ये तो एक बहुत अच्छी आइडिया है एंड्रयू के लिए कि वो चंपारण में रुके और हेल्प करें। एंड्रयू वाज विलिंग इफ गांधी जी एग्री। एंड्रयूज जो है थे वो सहमत हो जाते हैं कि ठीक है मैं रुक सकता हूं अगर गांधी जी चाहे तो, अगर गांधी जी कहेंगे तो मैं रुक जाऊंगा। बट गांधी जी वाज vehemently opposed। लेकिन गांधी जी ने इसका अपोज किया। ही सेड यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल if we have an Englishman on our side। वो कहते हैं कि अगर मैं अपनी तरफ से किसी भी अंग्रेज को यहाँ रुकने की सहमति देता हूं तो ये मेरे लिए गलत होगा। दिस shows the weakness of our heart, your heart। ये तुम्हारे हर्ट की वीकनेस सिद्ध करेगी, तुम कमजोर हो। द cause is just and you must rely upon yourselves। आपको अपने पर विश्वास रखना होगा, किसी अंग्रेज के द्वारा आप अपने लोगों की मदद ना करवाइए, इन अंग्रेजों को जाने दीजिए। इसलिए वह इनको जाने देते हैं। वो कहते हैं हम खुद से अपना युद्ध जीतेंगे। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन। आपको इन अंग्रेजों से कोई प्रॉप नहीं लेना होगा। मिस्टर एंड्रूज बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिशमैन। मिस्टर एंड्रूज जो कि अंग्रेज थे, ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली। वह हमारे माइंड्स को करेक्टली पढ़ लिए। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स एंड वी हैड नो रिप्लाई। राजेंद्र प्रसाद ने इस बात को समझ गए और वह इस बात पर कोई रिप्लाई नहीं दिए। गांधी इन दिस वे टॉट
us a lesson in self reliance. इस तरह से गांधी जी ने सेल्फ रिलायंस को पाठ पढ़ाया कि हमारे अंदर अपना रिस्पेक्ट होना चाहिए. इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर कॉपर्स वेयर ऑल बाउंड टुगेदर. शेयर कॉपर्स सभी एक दूसरे से बांध हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हों. सो बाय दिस आई वांट टू टेल यू दैट गांधी जी, who is known as the father of nation, he is indicated as the father of nation, our first president, and Mr. Tagore. He says that Gandhiji alone can did this. गांधी जी अकेले यह काम कर सकते थे. गांधी जी ने यह काम इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जुटा पाना एक गांधी जी के लिए ही पर था. गांधी जी ही कर सकते थे, बाकी और किसी ने इस तरफ अपना कदम नहीं बढ़ाया. तो गांधी जी ने हमें चंपारण के इस मैटर को हल करके हमें सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाया. गांधी जी ने चंपारण के इस मैटर को हल करके हमें बताया कि अगर हमारे अंदर एकजुटता हो, हम अगर यूनिटी में हो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं. और हमारे इंडिया में किसी चीज की कमी नहीं है. सबके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, सबके अंदर सेल्फ डिग्नेशन है. सभी लोग अपना सम्मान चाहते हैं. इसलिए हमें अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए किसी पर आश्रित होने की जरूरत नहीं है. तो दोस्तों, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस लेसन्स को पढ़िए और बहुत ध्यान से पढ़िए. और पढ़ने के लिए आप हमारे इस सफलता चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.